مجھے پتا ہے کہ اپنی آواز مجھے کہاں تک پھینکنا چاہیے اور اسٹیج کے فنکار کو اپنی آواز کو، اپنے ڈائلاگ کو یا اپنے مکالموں کی ادائیگی جہاں تک فاصلہ ہے وہاں تک کہنے کی عادت ہے۔ شکور صاحب کے تعلق سے ایک بات اور بتا دوں میں کہ پروفیسر احسن شکور نظام کالج کے صدر شعبہ اردو بھی ہیں، تو ایک طرح سے نظام کالج بھی دیکھتے ہیں، نظام کالج کا بھی حال و مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے، اور ادارے ادبیات اردو مکمل طور پہ صرف اور صرف پروفیسر احسن شکور کا مرہون منت ہے، کیونکہ یہی ہے جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں، ورنہ وہ ادارہ زور صاحب کے ہاتھ کبھی کا بند ہو چکا ہو۔ ایک بار زوردار تالیاں شکور صاحب۔ پروفیسر احسن شکور صاحب کے پاس دعوت لے کر کے اور آپ کو جب ہم نے یہاں تشریف لانے کے لیے کہا تو آپ چونکہ گناہوں مصروفیات میں مصروف ہیں اور تمام کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ حج کے قافلے واپس ہو رہے ہوں گے اور آپ کا جلسہ اجلاس اور مشاعرہ چل رہا ہوگا۔ اس کے باوجود محترم ہماری اس محفل میں محترم پروفیسر احسن شکور صاحب تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں، ہم اس کے بےحد شکر گزار ہیں، ہم اس پر بےحد شکر گزار ہیں پروفیسر احسن شکور صاحب کے۔ اب میں آپ کے سامنے محترم قمر الدین صاحب انجینئر ان چیف سابق ریاستی حکومت جو ہے ان سے درخواست کروں گا کہ آپ اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس ادب حیدرآباد کے احترام پر میں ظاہر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب کو بلایا اور اسلم فضلی صاحب کی بہت ہی شکر صاحب اوپر رکھنا تھا اور بہت بڑا پروگرام ہونا چاہیے تھا۔ سب کو سلام بہنوں اور بھائیوں کو۔ آج ایک شام اسلم فضلی کے نام سے جو اسلم بھائی کو تو ہر کوئی جانتا ہے، پورا انڈیا جانتا ہے۔ یہ دکن کے بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر ادیب جناب اسلم فضلی کے جناب ادبی خدمت کی طرف میں آج رکھا گیا ہے۔ شکور صاحب بولے صاحب کہ بہت اہم شخصیت ہے، یہ ہر ایک سے کسی سے ملے تو ان کو چھوڑنا نہیں دل ہوتا، اور ایک ایسا ملتا ہے خلوص سے کہ ان کے پاس کوئی غرور نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے شکور بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ کیوں نہ ہمارا اسلم بھائی کا ایک ایڈوائزر ہے اپنے میرے اردو اکیڈمی میں اپائنٹمنٹ نہیں چھوڑا 2 لاکھ دے رہی گاڑی دے رہی۔ یہ وہی میں بولوں کہ خدمت میں بھی، کیونکہ میں بھی ایگزیکٹو میں کر رہا ہوں CD بیٹ میں، میرے بھائی بھی جانتا ہوں کہ آپ کو مل کے ایک دیکھ بھی کریں گے۔ ویسے میں تلنگانہ اسٹیٹ کا چیئرمین ہوں آل مینارٹی امپلائز کا، تلنگانہ اسٹیٹ آل مینارٹی اسمبلی کا چیئرمین بھی ہوں میں، شکر بھائی کے اوپر بیٹھنے کی کامر بھی ہے ذرا، اس واسطے کہ اس واسطے میں بات کر رہا ہوں شروع میں سے کہ کیوں نہ ان کا اپائنٹمنٹ کیا جائے۔ چلو بات چیئرمین نہیں کرتے، ایڈوائزر کو لے لیں گے۔ ایڈوائزر کی تنخواہ آج 1.5 لاکھ ہے، پھر گاڑی ہے، کیونکہ اردو کے لیے بہت ضروری ہے۔ اردو کے لیے ہمارے اسلم بھائی کا اپائنٹمنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو لے رہے جو 10 سال پہلے جیسا جنگوں کے ٹرانسفر کے پربھاکر صاحب ہے، 10 سال ہوا ریڈر کو ان کو لے کے بڑھا دی، جیسا ہمارے اسلم بھائی ہے۔ تو آپ لوگوں سے دعا کریے کہ اسلم بھائی کو کچھ نہ کچھ ایک ایسا کچھ دے تلنگانہ اسٹیٹ میں جو ان کے خدمت دیا جا سکے۔ آپ بولیے کون ہے اردو میں اتنے بڑے ایسے کہ آپ ای ٹی وی جو آیا آپ کی وجہ سے آیا، اردو چینل جو ہے نا، آپ جو خدمت کریں ای ٹی وی میں، ان کی وجہ سے وہ ای ٹی وی چلائے، اور آل انڈیا ریڈیو میں آپ 30 سال کام کریں۔ آل انڈیا ریڈیو میں اسلم فضلی کا پروگرام آتا تھا اس زمانے میں، 2000 کا امپلائمنٹ کے بارے میں کئی بچے یہ ہیں ان کے پروگرام سے، صرف 5 منٹ ہم بھی سنے پروگرام میں کہ امپلائمنٹ کا روزگار کا 5 منٹ 6 بجے کوئی بھی کہیں بھی رہے تو میں سنتا تھا، جو مجھے 50 تھا، مددگار انجینئر تھا میں،
कई रेडियो सारे असम का प्रोग्राम हमारा बच्चों के नौकरी का खास तौर सुनने मिलती है, क्योंकि आप खिदमत ऑल इंडिया रेडियो में 30 साल करें, बहुत कई लोग, लाखों लोग इनकी रोजगार के स्कीम में फायदा उठाए। तो ऐसा शख्स अपने लिए, तेलंगाना स्टेट के लिए काबिल फख्र है, बहुत ही काबिल फख्र है। आप तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप दुआ कीजिए। हमारे शुगर भाई से मैं खास तौर से अदबन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली अपॉइंट हिम इमीडिएटली एंड रिक्वेस्ट हिम टू केसीआर। तो केसीआर साहब से आप मिलेंगे और एक टीम बना के मिलेंगे, मिलके ऐसा केसीआर साहब से अपन गुजारिश करेंगे जरूर, हम मिलके से मिलके उनको जाके ऐसा बोलेंगे कस्टम पर साहब बहुत ही अच्छे, उन्हें भी जानते हो केसीआर साहब के बारे में, क्योंकि मैं भी सिद्दीपेट में 2 साल ई करा, 21 रुपये में 50,000, गजवेल में 87 में डिप्टी करा, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ मैं, और बहुत ही ये हूँ विश्वास है कि उन्होंने अब ये दूसरे से कुछ देना चाह रहे हैं, उसमें हमारा असलम भाई का नाम भी अल्लाह से दुआ कीजिए शामिल कराएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि इनके लिए कितनी भी तारीफ होगा मैं आप सब लोगों को मैं बोलना नहीं चाह रहा। और एक भाइयों बहनों से गुजारिश है, हाँ जी, और एक आप लोगों से भाइयों से गुजारिश है, आप वालिदैन से, कि भाई बच्चा ज़्यादा बी करते बीटे करते बाहर जा रहे, अरे बच्चों को रोको, यहाँ ये TRS में एम्प्लॉयमेंट स्कीम आई, ग्रुप 1 अप्लाई करो, ग्रुप 2 दीजिए या पढ़ाइए, बाहर जाते पढ़ते बाहर चले जा रहे। अरे गवर्नमेंट सर्विस रोड के जैसा उर्दू हमारे शुक्र के बाद ये स्टडी सर्कल है, तेलंगाना स्टडी सर्कल है, IAS कोचिंग कर सकते हैं आप, ग्रुप 1 बना सकते हैं, ग्रुप 2 कर सकते हैं। अरे इंटर पास होते बच्चा बाहर, डिग्री होते बाहर जाओ। आज हम बी करके चीफ इंजीनियर बने, कितने मिनट चीफ इंजीनियर 8 साल करा, मैं 2-3 साल इंजीनियरिंग चीफ करा, आज पूरे AP में संभाला, R&B, पंचायत, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, म्यूनिसिपल, पूरा का मैं इंजीनियरिंग चीफ था, जनरल। क्या लोग बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को ग्रुप 1 लिखाइए, IAS बनाइए, आप ये सहूलत पढ़ने के लिए सहूलत है आपको, अनेक तेलंगाना स्टडी सेंटर बनाया गया है, फ्री कोचिंग है आपको, फ्री किताबें दे रहे। अरे SC ST में कितने लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, कोई हमारे पास जो कोई इंजीनियर चीफ इंजीनियर नहीं है मुसलमान, कोई दफ्तर में 1% नहीं है एम्प्लॉइज, कोई गवर्नमेंट में अभी आज तक 1% कोई मुसलमान नहीं है, अटेंडर ड्राइवर। तो अपने लोग इतने काबिल होते हुए जरा ग्रेजुएट करके बाहर चले जा रहे, बाहर किसी कैसा भी टेम्पररी ना सकते, कभी भी आना पड़ता। अरे क्यों नहीं कलेक्टर बनो, हाँ कमिश्नर बनो या डिप्टी कलेक्टर बनो, ऐसा आप सोचिए आपने बच्चों के लिए। मैं गुजारिश करूँ आप लोगों से, बच्चों को एग्जाम दिखाइए, कई वैकेंसीज है, अब 1,70,000 1,07,000 वैकेंसीज है, कम से कम एक बच्चे हमारे 30,000 रुपये आगे कितनी बड़ी हो जाती है, कोई सब बाहर ही। अरे बाहर से बुलाओ, एग्जाम देखो, 3 महीने है, नवंबर में इम्तिहान है, दिसंबर में इम्तिहान है, बुलाइए बच्चों को इम्तिहान दिखाइए, फिर जाओ बोलो इंटरव्यू देने के बाद फिर जाओ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तकरीब तो ये करने का मौका नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, सरपंचों से, वालिदैन से, भाइयों से कि बच्चों को बाहर से बुलाइए, अपने बच्चों को मुस्तकबिल अच्छा कराइए, इम्तिहान दिलाइए, इम्तिहान में पास हो जाते काबिल है, हम लोगों को काबिल भी है। अरे वो SC ST का जितने IAS है, मैं दुनिया देखा हूँ, कोई SC कोई IAS को ये लखनऊ में पूरे अपर हम लोगों ने कहते 95% मार्क्स होना, वो लोगों को 25 मार्क्स में पास है, 25 मार्क्स को IAS में डालो, अपने को 95 मार्क्स होते फेल है। तो इस बात से जितने मैं IAS को देखूँ, कोई किसी को भी एक बात नहीं आता, जो हमसे सीखे से किसी को कुछ नहीं आता, इतना ड्राफ्ट नहीं ले सकते, तो हमारे से सीखे से विश्वास है कि आप गुजारिश करो, अदब बच्चों को बुलाइए, ग्रुप 1 ग्रुप 2 तहसीलदार, ग्रुप 2 तहसीलदार, ग्रुप 1 होते डिप्टी कलेक्टर, IAS बढ़ाइए, कोचिंग कराइए। बच्चा एक मरता फेल होता तो दूसरे मरता पास हो जाता, तीसरे मरता पास हो जाता, तो ऐसे ही कर रहे। तो खास तौर से मेरी इल्तजा है कि शुक्र साहब के बारे में भी बहुत बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह देखिए, निजाम करा से तनख्वाह ले रहे हैं, एडिशनल चार्ज काम कर रहे हैं,
तनख्वाह उनकी मिल रही है, एक पैसे का रवादा नहीं आप निज़ाम। मैं अच्छा जानता हूँ आपको, तनख्वाह मिल रही है उनके निज़ाम का अलग से। आप काम कर रहे हैं, उर्दू अकाडमी हर रोज संभाल रहे हैं, रात में नींद नहीं है, तो कितना याद है कि अपनी कितना ये नींद नहीं उनको। और जो हाजा का है जरा सीएम से बात कर रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं, कोई नहीं समझ सकता हूँ। हज भी आप संभाल रहे हैं, उर्दू अकाडमी भी कोई नहीं समझ, क्योंकि उन्होंने किसी ये उर्दू अकाडमी से ना हज से तेलंगाना की गवर्नमेंट से एक पैसे का दावेदार नहीं, सिर्फ निजाम कॉलेज से आप पैसे रहे, यूनिवर्सिटी से आपको पैसे मिल रहा, खाली एडिशनल चार्ज 3 महीने देते गवर्नमेंट में, 3 महीने, उसके बाद वही बात। तो कितना आप मेहनत कर रहे हैं, या कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी जितने जो है कौम की खिदमत कर रहे हैं आप, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट के तरफ से सवारी का इंतजाम है, सवारी का इंतजाम, बहुत शुक्रिया भाई। हाँ जी, सवारी कार दे रहे उनको, तो ऐसे आदमी भी इनको भी अपन इनको भी क्या है, तो इसके बाद भी उनको अल्लाह ताला अच्छा चेयरमैन का कुछ मिल जाता, उनका कुछ देते, क्योंकि अभी करो मैं अभी भी कर सकते हो, अभी भी इनको भी चेयरमैन बनाना जरूरी है मान लीजिए। अब तो वैसा आपकी दुआ से तकरीबन एक 15 दिन में वैसा से बना रहे वाइस चांसलर, दुआ कीजिए वाइस चांसलर बनने वाले हैं। और आप लोग खास तौर से आज एक शाम आपने एक शाम इस्लाम मस्जिद ग्राम पे दुआ कीजिए कि उनको कोई अच्छा पोस्ट तेलंगाना गवर्नमेंट दिया जाए, क्योंकि काबिल आदमी है। इसलिए से आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं साहब का बजट जिला अदालत के नाम पे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्र भाई बड़े साहब, अच्छा ये प्रोग्राम अच्छा पोस्ट के काबिल नहीं, बेशक बेशक हम कुछ नहीं कर सके उस बात का इतना। आधा उर्दू अकाडमी आधा 50,000 समझे, तो ऐसा करेंगे। फिर एक शाम रखिए, ये शाम अरे घंटे बाद में देखिए कहीं पे देखिए ऊपर भी हाल है, ये तो उर्दू अकाडमी का साथ है। बहरहाल आप लोग दुआ कीजिए, बहुत शुक्रिया नाजिश की भी बात करने का मौका मिला। मैं भी एक देहात में पैदा हूँ, खमरुद्दीन मेरा नाम है, मैं धारूर जिला रंगाड़ी पैदा हुआ हूँ, एक मामले से गाँव से आया हूँ। जीवन के इंजीनियरिंग का शौक था, बल्कि कोई बहुत चीज़ें कोई हमारे को कोई भी नहीं काट पाता, अल्लाह ही सिवा। हम इंटरव्यू दिए, सुपरवाइजर बने, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर बने, डिप्टी बने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, फिर सुपर इंजीनियर बने, उसको डिप्टी चीफ इंजीनियर, उसके बाद चीफ इंजीनियर, उसके बाद इंजीनियरिंग चीफ। सिर्फ कोई नहीं, कोई अल्लाह के साथ अब लोग बोलते हैं जनरल साहब सिर्फ 2007 में मैंने, जबकि चीफ इंजीनियर 2000 में बन गया, 2000 में चीफ इंजीनियर बन गया, 2000 चीफ इंजीनियर बन गया। सीएम साहब के साथ सलाम भाई कैसे कर दीजिए इंशाल्लाह जरूर दुआ करिए। असलम भाई को खाली बिठा नहीं है, असलम भाई को गाड़ी 1 लाख गाड़ी रख रहा है, तो खास तौर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ खुशबू भाई के लिए, खास तौर से भाई गुजारिश है काइंडली हमारे असलम भाई के लिए टाइम निकालिए, कैसा भी करिए, उतना कुछ करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एंड ग्रेट कोऑपरेशन। जनाब कमरुद्दीन साबिरी साहब की साफ गोई और बेबाकी बेहद पसंद आई। मैं जनाब जायद मोहम्मद वली मजमूआ जायद हरियाणवी साहब को माइक हवाले करता हूँ। प्रोफेसर मजीद बेदार साहब अपने साबिक सदर शोबा उर्दू जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी जामिया उस्मानिया अपने इधर अपने खैरात के इजहार फरमाएंगे। सबसे पहले हजरात तशरीफ रखिए, मुशायरा होने वाला है, इसके फौरी बाद इजलास के फौरी बाद मुशायरा शुरू होने वाला है। सिर्फ एक मुकर्रर बाकी रहे हैं, आपका इख्तिताम यानी ये इस्लामी बयान है। असलम फरशूरी साहब हैदराबाद की हर अंजुमन से वाबस्ता हैं, हर तहरीक से वाबस्ता हैं। अगर ये सिर्फ आवाज़ देते
तमाम अंजुमनों के लोग यहाँ मौजूद होते। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा बज़्म चिराग अदब को कि उन्होंने ये जहन बनाया और एक हमारे शहर की अहम शख्सियत की खिदमत के एतराफ़ के लिए आज के इस जलसे का इनेकाद फरमाया, जिसमें आप हम मौजूद हैं। हाज़रीन इकराम, गुफ्तगू बहुत हुई और बातें बहुत हुई हैं, लेकिन चंद अहम पहलू जो असलम फरशूरी साहब की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है वो आपके सामने कहने हैं। तालिब इल्मी के ज़माने से इनकी फितरत में दो खूबियाँ रही हैं, एक तो शरारत, दूसरी हरारत। ये शरारतें भी करते हैं और हरारत भी पैदा करते हैं। उसी का नतीजा है कि बेशुमार शोरा, बेशुमार मुकर्रिरीन और बेशुमार मकातिब ख्याल के अफराद को रेडियो टीवी तक पहुंचा है। क्यों? कि आप में ये खूबी है कि जिसमें जो सलाहियत है उस सलाहियत को पहचान कर उसको दूर तक पहुंचाना। और शरारतें ऐसी, अगर आप कभी मुशायरे में किसी शायर को आते हुए देखें तो उसका तारुफ कराते वक्त इनकी मुख्तलिफ रगे शरारत ऐसी फड़कती है, ऐसा तारुफ देते हैं कि वो शायर अगर कमतर भी है तो ऊंचा महसूस करता है, ऊंचा है तो अपने आप को आला तरीन महसूस करता है। ये शरारतें इनकी अनवारुल कॉलेज से, और अनवारुल कॉलेज में जो उर्दू का माहौल था और उर्दू के जो असातिज़ा थे, और ख़ास तौर पर वहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी के तलबा ज़ायद इसलिए जाते थे कि वहाँ इंतज़ामिया एक ऐसी शख्सियत के हाथ में था जो मजलिस तामीर मिल्लत के सरबराह थे। उनकी शफकत भी अपनी जगह और उनकी ताकीद भी अपनी जगह, और वो सब चीज़ों को लेकर न सिर्फ अनवारुल कॉलेज में प्रिंसिपल की नकल करते थे बल्कि उनके आने जाने की हरकतों को भी आप नज़र में रखकर लोगों के सामने पेश करते थे। ये मिमिक्री का आर्ट भी तालिब इल्म के ज़माने से पूरी ज़िंदगी पर तीन चीज़ें मुहित हैं, एक तो सदाकारी, दूसरी अदाकारी और तीसरी शायरी। मैं समझता हूँ ये तीन चीज़ें ही आपकी पूरी ज़िंदगी का हासिल है। और जैसा कि इससे पहले के मुकर्रिरीन ने आपके सामने बात बताई कि 1964-65 में जबकि हम सिटी कॉलेज के स्टूडेंट थे तो तलबा के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हमको बुलाकर प्रोग्राम देने में जब ये आगे बढ़ते थे, एक और साहब थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो ये चाहते थे कि इन बच्चों को निकाल दिया जाए, ये आगे बढ़ाकर हमको ले जाते थे, कुछ और जो लोग थे वो पीछे करने की कोशिश करते थे। तो ये अल्लाह ताला ने आप में वस्फ दिया है कि सलाहियतों की शिनाख्त और उन सलाहियतों को दूर तक पहुंचाना। आपकी सदाकारी, आपकी अदाकारी और आपकी शायरी तीनों औसाफ पर यहाँ गुफ्तगू हो चुकी है। शायरी में आपने ख़ास तौर पर नातिया कलाम मिदहते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया, और जो शख्स मिदहत रसूल की करता है वो शख्स और उसका कलाम कभी ज़ायद नहीं होता। आप जानते हैं कि दुनिया की हर ज़बान ख़त्म हो गई, संस्कृत हिंदुस्तान की सबसे तारीखी ज़बान, आज संस्कृत को जानने वाला कोई नहीं, भोजपुरी ख़त्म हो गई। हम ये समझते थे कि 400 साल पहले दक्कन में दक्कनी थी, दक्कनी ख़त्म हो गई। 1679 के बाद औरंगजेब के हमले के बाद दक्कनी ज़बान ख़त्म हो गई। लेकिन मैं ये कहता हूँ आज फिर दक्कनी जिंदा इसलिए है कि खुदी कुतुब शाह ने दक्कनी ज़बान में नात लिखी थी। तो जिस ज़बान में नात लिखी जाती है उस ज़बान को जिंदा रखने का अल्लाह ताला ने अपने कब्जे में रखा है। तो जिस ज़बान से नात अदा होती है, जो शायर नात लिखता है, उसका मर्तबा, उसका मकाम कितना बुलंद होगा। तो ये खुशी की बात है कि आप ड्रामा नवीस है, ड्रामे में काम किए हैं, अदाकारी आती है, गजल के बारीक हैं, गजल को शोरा, गीतकार, गजल बेहतरीन गाने वाले कौन हैं, उन तमाम लोगों से सबसे वाकफियत है। वो सब चीज़ों को छोड़कर आपने सिर्फ और सिर्फ
नातिया कलाम को इख्तियार किया कि आपका इख्तियार हमारे लिए सब्र और हमारे जज्बात को अंगेज करने का जरिया है। क्यों कि आप चाहते तो गजल लिखते, आप चाहते तो नज्म लिखते, आप चाहते तो मस्तवी, जो चाहे सिर्फ आप इख्तियार कर सकते थे, लेकिन नात को इख्तियार करके आपने साबित कर दिया कि दुनिया में इंसान का वजूद, और उस वजूद के लिए खुदा ने जिस जात को पैदा किया, जिस कायनात को पैदा किया, अगर उसकी शिनाख्त इंसान को ना हो तो फिर वो इंसान नहीं, जानवर से बचता है। हाज़रीन इकराम, मुझे खुशी इस बात की है कि हर मरहले में, जब मैं औरंगाबाद में था वहाँ भी मुलाकात, जहाँ सेमिनार में जाता हूँ सेमिनार के साथ मुशारा, और खास बात जब 316 जश्न सिराज हो रहा था, आप वहाँ मौजूद थे, ड्रामों में काम किया। हमारे दोस्त अहबाब कुछ मंचले किस्म के हैं, क्योंकि इनकी फितरत में भी मंचलापन है, तो एक साहब ने आपसे दरियाफ्त किया, अरे भाई ये तुम्हारा नाम ये असलम फरसुरी क्या है, क्या मतलब ये फरसुरी क्या है? तो ये कुछ जवाब देना ही चाह रहे थे, हमारे दूसरे दोस्त ने फौरन कह दिया, जो शख्स फर्श पर बैठकर शोर मचाता है वो असलम फरजोरी होता है। जो फर्श पर बैठकर शोर मचाता है वो फरजोरी होता है। तो बरजस्सा जुमले फिक्रे कहने और बरजस्सा जवाब देने और उसके साथ साथ अदाकारी को, सदाकारी को नए माना पहनाने में असलम फरसरी का कोई जवाब नहीं है। क्या हैदराबाद की खुसूसियत है कि आप गो के आए हैं किसी और इलाके से, लेकिन दक्कनी की शिनाख्त, अगर आप छोटी छोटी बातों का आपने मुजाहरा देखा है तो आपको पता चलेगा कि दक्कनी को कितनी फ्लुएंसी के साथ, कितनी हकीकत के साथ ये बयान कर सकते हैं। क्यों कि जज्ब करने का मादा अल्लाह ताला ने आपको दिया है। हर अच्छी चीज को जज्ब कर लेते, हर शख्स में जो अच्छाइयां हैं उसको इख्तियार करते, और जो खराबियां हो उसको नजरअंदाज कर देते। करीब 1966 से ऑल इंडिया रेडियो से मेरा रब्त रहा। जब औरंगाबाद गया ये वहां थे, वहां भी मेरा रब्त रहा। तो मैंने ये देखा है कि जिस तरह से रेडियो और टीवी को, खास तौर पर दक्कन रेडियो को, हैदराबाद रेडियो को जिस वक़ार और बुलंदी को पहुंचाया इन लोगों ने, इनकी पूरी टीम, वैसा कोई प्रोग्राम आज तक आपको दिखाई नहीं देगा। बाज़ लोग अशफाक हुसैन साहब का जिक्र करते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले दक्कन रेडियो में काम किया था। उनके दौर में बड़े अच्छे प्रोग्राम होते थे, हम तो उस वक्त थे नहीं, सुने नहीं, मालूम नहीं, लेकिन आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो के तमाम 18 मराकिज़ में सबसे आला मकाम हैदराबाद के प्रोग्राम को सिर्फ इस वजह से था कि अपनी अना के लिए नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, टीम वर्क के साथ काम करके हैदराबाद की छोटी छोटी बातों को वो मकाम अदा किया। ये टीम वर्क करने का आप में सलीका है। और आपको एक अहम बात बताऊं, शहर हैदराबाद का उर्दू मीडियम स्कूल जो 105 साल पुराना है, अशरफुल मदारिस स्कूल, जब उस मदरसे के इंतजामिया ने आपसे रब्त कायम किया तो आपने एक प्रोग्राम दिया, गुज़िश्ता 1.5 साल से अशरफुल मदारिस की चांदनी रात के नाम से ये प्रोग्राम हो रहे हैं आपकी निगरानी में। कभी गजल का प्रोग्राम, कभी कव्वाली का प्रोग्राम, कभी बच्चों की नज़मों का प्रोग्राम, हर वक्त एक नया प्रोग्राम, हर चांदनी रात को, हर महीना ये प्रोग्राम उर्दू का प्रोग्राम। तो उर्दू के बच्चों में सलाहियतें पैदा करने और उर्दू से शगफ पैदा करने, उर्दू तहजीब को नई नस्ल में मुंतकिल करने, इस काम में भी ये आगे हैं। ये उसी वक्त हो सकता है कि जबकि आदमी का मिजाज टीम वर्क का हो, ये इब्तिदा से ही टीम वर्क का काम करते रहें और मुशायरे में निजामत का भी मामला हो
تو वो भी एक बहुत बड़ा टीम वर्क रहता है। एक नाज़िम के दिल पे क्या गुजरती है, असलम फरसूरी से पूछिए कि हर किस्म का शायर ये चाहता है कि मेरी मदह हो जाए, मेरी बड़ाई हो जाए। वैसे वक्त कितने सब्र और इस्तेकामत के साथ स्टेज पे बैठना पड़ता है, कितने टेंशन रहते हैं, कितनी चिट्ठियां आती हैं और कितने मिनिस्टर के रिकमेंड्स आते हैं, ये सब आप हम जानते हैं। तो अल्लाह ने आप में वो सलाहियत दी है कि मिलजुल कर काम करना, कभी अपनी अना, अपनी बड़ाई, अपनी बरदरी, इसकी आपने कभी परवाह ही नहीं की। इसीलिए हर मरहले में ये कामयाब तरीन है। शायरी में भी नात लिखकर आज वो ऐसा कलाम पेश कर रहे हैं कि जो हमारे दिलों में उतरता है, दिलों को मुतासिर करता है, दिल की सलाहियत को बदलने की कोशिश करता है। इन चंद कलिमात के साथ मैं ये कहूँ, कुछ तजावीज़ भी पेश की गई। जहाँ तक तजावीज़ का मामला है, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत वो तजावीज़ जाना पड़ता है और वो सिस्टम को फॉलो किए बगैर वो तजवीज़ आगे नहीं बढ़ती। जो भी बातें कही गई हैं, हम तो यही चाहेंगे कि आला पैमाने पर हैदराबाद की तमाम उर्दू अंजुमनें सब मिलकर बेहतरीन प्रोग्राम, जिस तरह से आज एक शाम असलम फरसूरी के नाम वैसा बेहतरीन प्रोग्राम हो। मगर मैं एक गुजारिश, हम दक्षिणी लोग आदी हो गए हैं निशिस्तन बर्खास्तन, एक ऐसा मजल्ला, एक ऐसा रिसाला छपना चाहिए जिसमें इनकी तमाम खिदमात का इहाता हो, किताबी शक्ल। क्यों? उर्दू एकेडमी क्यों कि ये चीज अगर लाइब्रेरी में महफूज रहेगी तो आने वाली नस्लों को रहनुमाई करेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उर्दू एकेडमी को इस किस्म के प्रोग्राम करने की इजाजत दें, लेकिन उसके साथ ही ये पाबंदी भी आयद करें कि जिस शख्सियत का हम तहनीयत नामा पेश कर रहे हैं, जिसका प्रोग्राम कर रहे हैं, उसकी खिदमात के एतराफ़ के लिए एक मजल्ला, एक मैगज़ीन, एक जर्नल, उनकी तमाम सलाहियतों पर मुख्तलिफ लोगों से मज़ामिन लिखकर उनका कलाम, उनकी अदाकारी, उनकी सदाकारी, उनकी फिल्मी दुनिया से वाबस्ता की तमाम चीज़ों को उसमें समेटा जा सकता है और होना ही चाहिए। तो हम प्रैक्टिकल बनना है। आज की इस नशिस्त का हासिल यही है कि आप तमाम उर्दू के अहले ज़ौक़ हज़रात यहाँ मौजूद हैं। कई ऐसी महफिलें होती रही हैं, बड़ी बड़ी बातें होती रहीं, लेकिन अमल आज की दुनिया प्रैक्टिकल चीज़ चाहती है। तो हम आइंदा सबसे पहले मनसूबा ये बनाएं कि असलम फरसूरी साहब की शख्सियत, कारनामे और खिदमात पर मुख्तलिफ शख्सियात का इंतखाब करके उनको मौज़ूआत दिए जाएँ, उन्वानात दिए जाएँ, वो मज़ामीन लिखें, जिसको उस रिसाले में, उस जर्नल में शामिल किया जाए। ये मुबारक मौका है। जैसे कहा गया है, बेशुमार सलाहियतों वाले अशख़ास दक्कन की सरज़मीन में पैदा हुए, गुजर गए, हम अफसोस करते रहे, लेकिन बज़्म चिराग़ अदब काबिल मुबारकबाद है। हम एक ज़माना था, कहा जाता है कि क़ायदे मिल्लत ने जब औरंगाबाद में कदम रखा तो उन्होंने कहा था कि ये मुर्दों की सरज़मीन है, क्योंकि वहाँ कब्रिस्तान ज़ायद है। तो बाद लोग ये कहते हैं कि दक्कन भी मुर्दों की सरज़मीन है, क्योंकि मरने के बाद इंसान की इज्जत करते हैं, जिंदा रहने तक कोई पूछ के नहीं देखता। अब एक हरारत पैदा हुई है। एक शाम असलम फरसूरी के नाम के जरिए इस हरारत में तेजी लाइए, इस आंच को आगे बढ़ाइए और मुतालिबा किया जाए कि जो भी शख्स हमारे दरमियान अहम खिदमात अंजाम दे रहा है, उसकी खिदमात का एतराफ़ एक मजल्ला, एक बेहतरीन किताब और उसके शायान शान बेहतरीन एजाज़। ऐसा नहीं कि 25,000 दे दिए, 20,000 दे दिए, कोई अहम रकम नहीं है, बल्कि करोड़ों की रकम दी जानी चाहिए। अगर हर उर्दू दां तबका
ये इरादा कर ले तो फिर करोड़ों रुपया जमा हो सकता है, उर्दू एकेडमी दे सकती है, हुकूमत से मुतालबा किया जा सकता है। तो गरज मैं आज की इस एक शाम से इस्तेफादा करते हुए आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जिस शख्सियत का हम एतराफ़ कर रहे हैं, जिस शख्सियत को हम तहनीत पेश कर रहे हैं, उस तहनीत में मजीद बेहतरी लाने के तराकीब भी हमको सोचना चाहिए और तदाबीर भी करनी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है, क्यों कि जो शख्स काम करता है उस काम की वजह से उसका नाम होता है। मुसलसल रिटायरमेंट के बाद भी उस इलाके से पुराने शहर को अपनी गाड़ी में आते हैं अशरफुल मदारिस की मीटिंग अटेंड करने, उर्दू की मीटिंग अटेंड करने। तो इतना मसाफत तय करना आज शहर हैदराबाद में कितना दुश्वार हो गया है। तो इन चंद कलिमात के साथ मैं बज़्म चिराग अदब के सरबराहों और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए एक शाह असलम फरसोरी के नाम के तवज्जुह से हम सबको जमा किया। हमेशा ये होता है कि इनकलाबात कम लोगों से आते हैं, बड़ी बड़ी तादादों से इनकलाब नहीं। आप सब इनकलाब लाने वाले लोग, उर्दू की मोहब्बत रखने वाले हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जो बातें यहाँ कही गई हैं उसको गिराह में बांध कर हम आगे आगे का लाहे अमल तय करेंगे। उर्दू जिंदाबाद, उर्दू जानने पढ़ने लिखने वाले पाइंदाबाद। इन चंद कलिमात के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। खुदा। मैं आले जनाब प्रोफेसर मजीद बेदर साहब का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने अपने ज़रूरी ख्यालात से हमें नवाजा।